A very good afternoon to all of you. I am Nitish Chugh. I, on behalf of Emerging Businesses Chamber of Commerce, welcome you all. Today we have gathered here for a very nice webinar by a learned speaker. This program has been jointly organized by EBCC and Faridabad Income Tax Bar Association. उसके लिए we are very thankful to Tajinder Bhardwaj ji and in his absence Vijay Rajput ji, who is the current president of the IFFIT Bar. Today we have with us a very young and motivated speaker, orator, Govind Mishra ji, who does not, I can say he does not belong to this earth. He belong to some galaxy or a star who has just reincarnated on this earth to take off the burden from the shoulders of all the students and members and all other professionals. We welcome you, Govind sir. Today we also have with us Tajinder Bhardwaj ji, who is the chief guest of the session. इनके बारे में everyone knows a lot, but still दो शब्द मैं उनके बारे में कहूँगा. He is a very supportive chartered accountant and फरीदाबाद branch के past chairman भी रह चुके हैं. He is the only, I can say, he is the only chairman जिनके सभी मित्र हैं, सभी साथी हैं. कोई सामने कोई नहीं है, सब साथ में ही है. इन्होंने अपनी पूरी टीम को अपने साथ में ही लेके चला था. We welcome you, sir, Tajinder ji. Thank you very much. We also have with us CA Vishal Puri ji. He is the guest of honor today. Vishal Puri ji चंडीगढ़ ब्रांच के अभी करंट में ट्रेजरर हैं और मैं तो इनको अपना बड़ा भाई मानता हूँ और इनके कहे बिना हमारा तो पत्ता भी नहीं हिलता चंडीगढ़ में. And he is like my elder brother. We welcome you, Vishal ji. We also have with us CA Pankaj Goyal ji. पंकज गोयल जी मेरे छोटे भाई की तरह है. मेरी जन्मभूमि सोनीपत से. He is the current treasurer of Sonipat branch. We welcome you, Pankaj ji, with folded hands. We also have with us Sir Chhabra ji, HK Harinder Chhabra ji. He is the ex-convener of Pusa Road Study Circle. और हमारे सीनियर हैं, मेरे पड़ोसी भी हैं और मेरे मेंटर भी हैं, मेरे गाइड भी हैं. He is a single person with so many qualities with him. So we welcome you, Chhabra ji. और आज मेरे साथ सर बहुत सारे लोग और भी जुड़े हुए हैं. सारे के सारे पर्सनल टच के ही कॉन्टैक्ट्स हैं. मैं सबका बहुत ही स्वागत करता हूं. आज के सेशन की मॉडरेटर हैं पूर्णिमा जी और पैनलिस्ट में हैं हर्ष मित्तल जी. हर्ष मित्तल जी मेरे प्रोफेशनल पार्टनर हैं एंड ही इज द सेक्रेटरी ऑफ फरीदाबाद ब्रांच. तो आपका भी स्वागत है हर्ष जी. नितेश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है. ही इज द वाइस चेयरमैन ऑफ फरीदाबाद ब्रांच. हमारे साथ हैं अनिकेत जी, who is the founder member of this EBCC. So not taking much of a time, we are already quite late. I'll request Purnima ji to please take over from the session from here. Purnima ji. Am I audible? Yes. Okay. Thank you, Nitish ji, for such a concise and brief introduction about all the dignitaries present here. So I think first of all, I would like to congratulate the entire team of EBCC, which is organizing a very good and informative series of webinars for the benefit of all the professionals. And this webinar is 24th in the series, and it is being organized in collaboration with the FITBAR, Faridabad Income Tax Bar Association. And I welcome all the panelists, chief guests, and the guest of honor present here. So I also welcome the chief guest of the session, CA Tajinder Bhardwaj ji, who is the past chairman of Faridabad branch of ICI. So I would like to say something, sir. If you like to say something regarding the motivation for all of us. Please. Sure. Thank you, Purnima. First of all, I am thankful to Nitish for inviting me in this wonderful program. I was just talking to Govindji and others that these are very important moments in anybody's life where you are invited to join with such a nice gathering, beautiful gathering, where these moments are really rememberable moments in anyone's life. This is not a matter of becoming the chief guest or guest of honor or speaker
These are the moments where everything is going negative outside around us. There is something which is harming us mentally as well as physically. कुछ ऐसा अदृश्य सा डर है जो कि हम सबको डरा के रखा हुआ है, और उस अदृश्य डर से हम लोग ना जी पा रहे हैं, ना खा पा रहे हैं, ना काम कर पा रहे हैं। कल बहुत दिनों के बाद, पिछला लगभग 1 से सवा महीना मैंने अपना ऑफिस खोला। कल बहुत दिनों बाद मैं बहुत ज्यादा सेंटी हो गया बैठ करके, जब मैंने अपने आदमियों को काम करते हुए देखा कि ये पैशन के लिए काम नहीं कर रहे, इस वक्त ये पैसे के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि सबको खाना खाने के लिए पैसा चाहिए। तो मैंने ग्रुप पर मैसेज लिखा कि आज से ऑफिस का टाइम 11 बजे से 5 बजे होगा, कोई प्रेशर नहीं होगा, कोई तंग नहीं किसी को करेगा, सब लोग जितना काम कर सकते हैं उतना करें, लेकिन पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। कोई दौड़ेगा नहीं, कोई स्पीड नहीं पकड़ेगा, जितना आराम से स्लो मूवमेंट में काम हो, क्योंकि वो काम हमारे क्लाइंट का है, हमारा काम है क्योंकि हम है। लेकिन अर्निंग को अपने ऊपर डिप्रेशन की शेप में मत डालो कि मुझे काम करना है क्योंकि मुझे सैलरी चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। तो मैंने उनसे बोला कि मैं एक चीज आपको इंश्योर कर सकता हूँ कि 6 महीने का इंतजाम भगवान ने हमारे साथ कर रखा है। 6 महीने तक टेंशन नहीं है। 6 महीने में, इस 6 महीने जो काम किया उससे अर्निंग आएगी हमारे पास। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि आउटसाइड कोई भी फैक्टर ऐसा नहीं होना चाहिए जो तुम्हारे दिल और दिमाग में घुस जाए और तुम्हारी पर्सनैलिटी को खराब कर दे। तो ये आज का जो एक सेमिनार ये जो रखा है नितेश जी, ये बहुत ही अच्छा रखा है, क्योंकि इसमें वो सारे जो मैं फील करता हूँ कि हमारे हिडन फियर हैं। पहले हम लोग बोलते थे फियर ऑफ फेलियर, अब बोलते हैं फियर ऑफ डेथ। अब वो फियर ऑफ डेथ सबको, सबके आसपास एक ऐसी सराउंडिंग, हम लोग अपने पीएन के हाथ से पानी नहीं पीते, हम लोग किसी के हाथ से दिया हुआ खाना नहीं खाते, हम लोग किसी का दिया हुआ कोई कपड़ा नहीं पहनते। कितना बड़ा फियर मैन टू मैन एक हमारे बीच में, रिलेशन के बीच में आ गया है। लेकिन मैं फिर भी एज ए पर्सन फील करता हूँ कि इन वेबिनार से, इन ब्यूटीफुल वर्ड से, इन एक्सपीरियंस पर्सन से हम लोग कुछ ऐसा सुन पाए जिससे कि हमारी लाइफ बदल जाए। शायद यही सबसे बड़ा लक्ष्य है इन वेबिनार्स का होगा। और आज की जो वेबिनार है, मेरी भगवान से प्रार्थना है कि हम सभी आज यहाँ से कुछ ऐसा लेकर के जाएं जिससे कि नितेश जी को भी थैंक्स बोलें, गोविंद जी को भी थैंक्स बोलें, और सब लोग इस वेबिनार के थ्रू कुछ ऐसा लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर के जाएं कि भगवान सबका भला करे। थैंक यू वेरी मच। क्या लिखना है? थैंक यू। 9 नंबर याद। Purnima, your mic is off. Hello. Yes. I'm saying thank you for such nice word, because अगर आपके जैसा थिंकिंग सबकी होगी, सभी प्रोफेशनल्स की होगी, तो आई थिंक सबके लिए काम करना बहुत ही आसान हो जाएगा, एंड इट विल आल्सो बी पॉजिटिविटी फैक्टर फॉर ऑल ऑफ अस। एंड नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट सी विशाल पुरी जी, ट्रेजरर ऑफ चंडीगढ़ ब्रांच ICI, to say a few words, please. Thank you, ma'am. Thank you. Well, first of all, good afternoon to everyone. And I would like to thank Nitish Shukji, Chairman of Delhi Chapter, in Merging Businesses Chamber of Commerce. Thank you, sir, for having me on this webinar. Well, the topic for today is Journey to the Center of Self. Well, I hope the topic seems to be somewhere related to the incident that has happened in Mumbai recently. Well, definitely that is true that 2020 has been the most challenging year that we have seen in the last 100 years. As even our PM was saying that this is the most challenging year even world has not seen during the world war that has happened in the recent year. But this is not that this is happening for each and every profession, for every business, for every sector that are going through. This is a challenging time for all of us. But वो ही ना Darwin की theory है, the survival of the fittest, that is going to apply for the next 6 months or a year ahead. अब survival of fittest नहीं होगा, survival of toughest होगा. The person whosoever is most mentally tough is going to survive this challenge. Or even I was studying somewhere, reading somewhere that Mahendra Singh Dhoni के बारे में पढ़ रहा था, that he was not the fluent batsman of perfect technique, or you can say that person was having. There was many other players who had better technique than him. But the one thing that he has that doesn't have any, that none of the Indian players in the history have ever had, that he was the mentally toughest guy in the history of Indian cricket. That's why he took that his mental toughness, that strength, to cover his other weaknesses, and he has proved to be the best captain that we have.
अब बस वही चलेगा जिसके पास जो है वो अपनी बेस्ट चीजें हैं उसके ऊपर यूटिलाइज करे, उसके ऊपर फोकस करे, अपना अपना जो है सर्वाइवल ऑफ बेस्ट टफेस्ट के ऊपर ही चलेगा। एंड बी कंटेंट विद व्हाट यू हैव एंड डोंट कंप्लेन इफ यू डोंट हैव एनीथिंग, इफ यू आर मिसिंग समथिंग देन डोंट कंप्लेन। बस 2 लाइन नहीं कहना चाहूंगा कि छोड़िए शिकायतें, शुक्रिया अदा कीजिए, जितना है पास पहले उसका मजा लीजिए। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू विशाल जी, बहुत बढ़िया बात कही आपने। कंटेंटमेंट एंड नॉन कंप्लेंट नेचर होना चाहिए अब इस टाइम पे, तो वी हैव टू बी कंटेंटेड व्हाटएवर यू हैव विद यू। So with these, I also request CA Pankaj Goyal ji, Treasurer Sonipat branch of ICI, to share his words of wisdom with us. Thank you, Purnima ji. And first of all, I would like to thanks Nitij for having me here. And I also want to thank Nitish ji for having Govind Mishra ji here, because the persons whosoever is available would be fortunate enough to attend this kind of seminar which Govind Mishra ji is going to deliver. And so basically the Vishal Puri ji and other members rightly mentioned that this is world of challenges, and what I believe about challenges are that every challenge comes with an opportunity. So just want to quote one of the example here. So I personally belong to the fintech background. So yeah, I personally belong to the fintech background, and just want to share here because everybody is professional. So I was trying this. I'm into fintech segment from last 5 years, and I was continuously waiting for some magical days because putting efforts from last too many years in fintech, and got a chance from IIM Bangalore, and my company got selected as #1 fintech company by IIM Bangalore of India. Right. So every threat, every challenge comes with an opportunity. So rather than, definitely I am not discouraging that world that corona is not there. So definitely we should take care of ourselves. But definitely even person who are into core practice now started encashing their digital way of running their practice. Like people started using Google Cloud and anything else. So just want to make a suggestion to everybody, and everybody is capable of doing the same also, that we should harness the opportunities also which is coming with this challenge. Thank you, Pankaj ji. You rightly said that all the challenges come with their opportunity along with, so we have to just recognize the opportunity hidden in there. So with this, I'll request CA Harinder Chabda ji, ex-convener Pusa Road CPA Study Circle, to share his words. Over to Harinder ji. CA Harinder ji. Sir, am I audible? CA Harinder ji? I think he's not got some network issue right now. Do we have Advocate Vijay Kumar Rajput ji online? No. Should we start with the speaker then? Harsh Mittal is left. Okay. Harsh Mittal ji, Secretary Faridabad branch of ICI. So please share. Good evening, everyone. First of all, I would like to thank EBCC and FITBAR for organizing such a wonderful webinar. And I find myself very lucky to be here as a panelist of this webinar. मैं बस यही कहना चाहूँगा कि इस भागदौड़ भरी जीवन में हम अपने आप को भूल चुके हैं और सारी तरफ नेगेटिविटी है, कोरोना है। पर अभी मेरी गोविंद मिश्रा जी से 2-3 दिन पहले ही बात हो रही थी, तो इन्होंने भी बहुत अच्छी बात मेरे को बताई कि ये जो टाइम है, जो हमारे पास अभी टाइम आया है, तो इसमें हम अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं, कुछ नया इन्वेंट कर सकते हैं। अपने आप को भागदौड़ बड़ी जिंदगी में हम भूल चुके हैं, तो अपने आप को निखार के सामने लाएं, ताकि जब ये हमारा जो कोरोना काल जब समाप्त होगा तो हम एक अच्छे से उभर कर आए।
कई लोग अपनी फिटनेस पे काम कर रहे हैं, कई लोग अपने नॉलेज पे काम कर रहे हैं, अपने अलग, सबकी अलग अलग अपने शौक हैं, अपने शौक भी पूरे कर रहे हैं। जैसे भारद्वाज जी के बारे में, हमारे चीफ गेस्ट हैं, उनके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि इन्होंने 2012-13 में हमारे ब्रांच के चेयरमैन थे, तो इन्होंने जिस डेडिकेशन के साथ हमारी ब्रांच को चलाया और यंगस्टर को आगे लेके आए, तो उसी से प्रेरित होके हम भी आगे आए। तो मैं तेजिंदर भारद्वाज जी का सबसे पहले शुक्रिया करना चाहूंगा और उनका स्वागत भी करना चाहूंगा आज के वेबिनार में। और गोविंद मिश्रा जी के बारे में तो जो कहा जाए, मतलब समझ नहीं आता कि वो कहाँ, एक बार उनको सुनने बैठे तो ऐसा लगता है कि बस सुनते ही रहें। अभी 1.5 घंटे का हमने ये वेबिनार रखा है, पर मेरे को लगता है इनको 3 घंटे भी सुनेंगे तो कम रहेगा। तो गोविंद मिश्रा जी, such a wonderful person I have ever met, और इनकी कमांड ओवर द लैंग्वेज, वेदर इट इज हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, माइंड ब्लोइंग। थैंक यू सर। मैं अपने आप को बहुत ही लकी समझ रहा हूँ कि आज मैं बहुत ही अच्छी चीजें गोविंद मिश्रा जी से लेके जाने वाला हूँ, और सभी से अनुरोध करूंगा कि बहुत ध्यान से सर को सुने ताकि अच्छी चीजें हम लेके जा सकें। थैंक यू वेरी मच। Over to Purnima. Okay, so rightly said by Harshdi, Govind Mishra sir is a famous motivational speaker and he doesn't need any introduction as such, but still as a protocol I would like to introduce him. He's the founder of GMCS Business Consultancy LLP, which is and he's an incisive professional, proactive leader and a trainer. He holds the professional degree of ICSI and is a member of the Institute of Company Secretaries of India. Over a decade, he has touched life of numerous people across the country. He has been invited by reputed corporate houses and organizations as a keynote speaker and trainer for public speaking, soft skills, behavioral skills, business communication, relationship management. He is also a visiting faculty to renowned institutes, colleges, and universities. He is also closely associated with many organizations and education institutions, corporates, NGOs, etc., for various CSR initiatives. So once again, welcome Govind Mishra sir, and we are actually very eager to listen from you now. So over to Govind. Thank you, Purnima. Thank you very much. तो ये चांद के अलग-अलग फेज होते हैं, कभी पूर्णिमा होते हैं, कभी अमावस्या होते हैं, लेकिन चांद को कहते हैं ना कि चारू यानी कि मनुष्य की खूबसूरती, वह आंतरिक खूबसूरती, उसको छिपाया नहीं जा सकता और ना ही ये कभी घट सकता है. So to all the members of EBCC and PITBAR, good evening, ladies and gentlemen. And I could see many faces who are an integral part of my life. So, I could see Tejinder ji, Santosh ji, Arvind ji, and they are the people who were like a guide and mentor to me. Then I have my students over here, and thankfully I feel great and privileged that we are sharing the stage virtually today and on the same stage. And for a teacher, for a guru, it is always a matter of pride that when the student rises, the teacher always feels elated. That is the beauty of the Indian knowledge, the Indian way of teaching. So, देवी और सज्जनों, आज काफी खूबसूरत विषय है जिसपे मैं आप लोगों की राय जानना चाहूँगा, because मेरी अपनी कोई राय है ही नहीं. मैं लोगों को सुनता रहता हूँ और मैं चोर हूँ, मैं चुराता हूँ ज्ञान. जहाँ मुझे ज्ञान मिल जाए, मैं उस ज्ञान को चुरा लेता हूँ और फिर उस ज्ञान को मुझे लगता है कि शायद जिसको जरूरत है उस तक पहुंचा देता हूँ. तो मेरा यही रोल रहा है और यही करता आया हूँ. आज भी वही करूँगा, कोई नई चीज नहीं. सबसे पहले यही बताना चाहूँगा कि मेरा इस धरती पे अवतरण नहीं हुआ है. मैं भी उसी जैविक प्रक्रिया से इस पृथ्वी पे आया हूँ जैसे हम जैसे सारे कोलीग्स हैं, पैनलिस्ट हैं. सो और ना ही अभी मुझे स्वर्ग की अभिलाषा है. तो अभी मैं इसी धरा पे रहना चाहता हूँ, मनुष्य की धरती पे रहना चाहता हूँ, मनुष्य लोक को भोगना चाहता हूँ और मनुष्य के जीवन के एक एक क्षण को एंजॉय करना चाहता हूँ. तो मुझे धरती पे ही रहने दे
अन्यथा दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि फिर मैं दीवारों पे पाया जाऊंगा और उसके सामने फूल लगे होंगे तो बड़ी वेदना होगी. तो बट यस, it was wonderful, starting by you all. Today we are going to share something. We are going to share not a topic. We are going to share not a thought. We are going to share not a moment. We are going to share a part of the self, a part which is yours. I beg, please give that part of yours to me today, so that I can understand you internally. क्योंकि हम में से कई लोग internally अपने आप को समझ पाए नहीं. सेशन आगे बढ़ाएंगे और आप सबसे गुजारिश होगी, आप जितने ज्यादा सवालों की बौछार कर सकते हैं चैट में शब्दों से, मुझे बड़ी खुशी मिलेगी. मैं पूर्णिमा जी से रिक्वेस्ट करूंगा, नीतीश जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई भी सवाल या चैट्स वगैरह आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं यूट्यूब वगैरह पे, तो प्लीज वो मुझसे साझा करें ताकि हम उनको डिस्कस कर सकें. और इस दौरान अगर आपको लगता है कि कोई चीज आपके दिल को टच कर, तो कहते हैं पहला पहला प्यार, और कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट, अगर वो मोमेंट आपकी लाइफ में आज आता है तो उसको कागज पे लिख लीजिएगा, बिकॉज ऑडिटर के लिए ऑडिट वर्क बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्यूचर रेफरेंस में उसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है. सो देवियों और सज्जनों, कौन बनेगा करोड़पति का पहला सवाल. SELF, सेल्फ, अंग्रेजी का एक ऐसा शब्द है, एक प्रीफिक्स है जो बहुत कॉमन है. क्या आप लोग मुझे इस प्रीफिक्स के साथ और कुछ चीजें जोड़ के कुछ नए शब्द बता सकते हैं? लाइक फॉर एग्जाम्पल सेल्फ कॉन्फिडेंस. अगर आपके तरफ से कोई और ऐसे शब्द आते हैं तो सेशन आगे बढ़ाएंगे. आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी मुझे शब्द बताइए. सेल्फ रिलायंस. सेल्फ रिलायंस, गुड. सेल्फलेस, पूर्णिमा ने लिखा, थैंक यू. और सेल्फ एस्टीम. सेल्फ एस्टीम, वेरी गुड. डिपेंडेंट. सेल्फ डिपेंडेंट, माय गॉड. Self made. सेल्फ मेड, गुड. Self control. सेल्फ कंट्रोल, Self introspection. सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ Contented. कंटेंटेड, नाइस. सेल्फ रिस्पेक्ट, साक्षी ने लिखा. सो Sorry, I am late. I have Sorry? to go somewhere. जी I हरिंदर am जी. late. I have to go somewhere. I am back now. कुछ हरिंदर जी कह रहे हैं. मैं कहीं चला गया था, वो वापस थोड़ा लेट हो गया. अच्छा, सॉरी. He just said he's back. तो self imagine such a beautiful word. Self love, Sakshi ने लिखा. Self love, exactly. The past 3 months, I tell you, as Harsh was talking, somebody did focus on their body, somebody did focus on skills. I did focus on 2 things. One, what Harsh focused, and that is called bodybuilding. So I focused on building my body, and I focused on building my mind. So मेरा focus 2 ही चीजों पे रहा, mind and body. And बड़ा मजा आया. अच्छा, ये जितने भी शब्द आपने सेल्फ से रिलेटेड शेयर करे हैं, इनको याद रखिएगा. इनको इसलिए याद रखेंगे, जब हम सेशन को कंक्लूड कर रहे होंगे तो इनका इंपॉर्टेंस मैं आपको बताऊंगा. लेकिन उसके लिए आपको ये शब्द याद होने चाहिए. अच्छा, अब आता है दूसरा सवाल. इसका जवाब वो लोग दे पाएंगे जिन्होंने फरीदाबाद ICI ब्रांच में लोकसभा स्पीकर जी का प्रोग्राम अटेंड किया था. और सवाल ये है 5 करोड़ का. What is the meaning of उपनिषद? उपनिषद का अर्थ बताइए. 5 करोड़ का सवाल है. उपनिषद का अर्थ बताइए. उपनिषद बहुत छोटा शब्द है. उपनिषद. सर बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है. अरे क्या डिफिकल्ट है यार, तुम इतने डिग्री ले ली तुमने. एक छोटा सा शब्द है उपनिषद, और इसमें मूर्धन्य श है. नहीं, इसमें कौन सा श है नितेश?
तालव्य दंते मूर्धन्य 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 श। थैंक यू। सो इसका मीनिंग तो मालूम ही होगा। सो उपनिषद का अर्थ, कम ऑन आई एम वेटिंग 10 seconds 10 seconds, डोंट गूगल, मैं देख सकता हूं, मैं समय हूं, मैंने समय को बदलते देखा है। हर्ष जी मुस्कुरा रहे हैं। Okay, what's the meaning of उपनिषद? क्योंकि अगर आप गूगल भी करेंगे तो उसका पहला पेज पे इसका मीनिंग आएगा ही नहीं। सोनिया शर्मा ने लिखा है स्पिरिचुअल टीचिंग। नो, और कुछ बताइए। कम ऑन। अगर ये IND-AS होता या IFRS होता तो फटाफट जवाब मिल चुका होता अब तक। चीजें बहुत आसान होती हैं, बहुत छोटी होती है, हम लोग उसको कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। I'm waiting for the right answer. Come on, hurry up. Self discovery, no. But I appreciate Sonia that आपने try किया। पंकज गोयल ने लिखा है extraordinary learning from expert. You are 5% close. 5% close. Come on. Sitting with devotion or with some devoted personality. Thank you. जो इंद्र हर किसी में वास करे उसी को हरिंदर कहते हैं, और हरिंदर जी ने एकदम सटीक जवाब दिया। उपनिषद का अर्थ होता है सिटिंग डाउन नियर। You know, it refers to the student sitting down near the teacher while receiving the Brahma Gyan. And the Brahma Gyan, you know, it helps you to annihilate the ignorance. So अज्ञानता से ज्ञान के परत जो लेके आता है, उस प्रक्रिया को उपनिषद कहते हैं। सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, you know why? A question has no signification if it is not possible to discover the operations permitting us to answer it. इसलिए questions बहुत जरूरी है। आज मेरे डाउनलोड की स्पीड बहुत तेज होगी। अब आपको अपने अपलोड की स्पीड का ध्यान रखना है कि आप उस डेटा को कितनी तेजी से अपलोड कर पाएंगे, क्योंकि मैं तो आपके दिमाग में डाउनलोड करता चला जाऊंगा और जल्दी करता चला जाऊंगा। आपको अपलोड करना है क्योंकि कभी भी सवाल पूछे जा सकते हैं। So, अगर आज आप देखेंगे people, you know, like we all are on the screen, we all are educated people. So, like us, people across the globe are sufficiently educated. Educated for what? To read newspapers, to read magazines, to listen to the speeches broadcasted by the politicians, business people, you know, the sports people. And these informations are saturated, यानी कि अलग किया जाता है, saturated with commercial, political, social propaganda. And these techniques are becoming more and more perfect. Ladies and gentlemen, our education today is restricted to that particular information, and that is creating chaos in our mind. And thanks to www, Facebook, Twitter, Instagram, today each individual is always in the direct or the indirect communication with other human. आज हम इसी मीडियम से एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, डायरेक्टली भी कर रहे हैं, इनडायरेक्टली भी कर रहे हैं, and this keeps himself constantly informed about the small or important events taking place in our life, in our city or the globe. और मजे की बात, पूरे दुनिया का ज्ञान ले लिया हमने। सुबह उठते ही we look at the ping. What's the ping? You know, who pinged me? Twitter पे who commented on me? Facebook पे who commented and liked my status or my picture? And Instagram, how many likes? I got it. So we are like flooded with these informations. पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान हमें Facebook से मिल जाता है, लेकिन दिक्कत क्या है? जब स्वयं की बारी आती है, तो कहीं ना कहीं वो ज्ञान हमारा धरा का धरा रह जाता है। पूरे ब्रह्मांड के ज्ञान का ज्ञान ले लेते हैं, लेकिन अपने बारे में हम कहीं
कहीं ना कहीं अनभिज्ञ, हम कहीं ना कहीं अज्ञानी रह जाते हैं। And the irony of so-called development, you know, people call it development. मैं एक ट्रैवलर हूँ, एक स्पॉन्टेनियस ट्रैवलर हूँ। मैं कभी भी निकल जाता हूँ ड्राइव पे, मेरी ड्राइव 3000, 4000, 5000 किलोमीटर्स की होती है। And I love to drive to places where there is no population, where there is no skyscraper, where there is no buildings. I love to be with nature, and that is not isolation, that is my solitude. तब मुझे लगता है कि जब शहर की तरफ आते हैं तो उन्हीं जंगलों को, उन्हीं गांवों को हटा के इमारत बनाए जाते हैं। लोग इसको डेवलपमेंट कहते हैं। I don't know what development is. So the irony of the so-called development is that the modern civilization seems to be incapable, I'll repeat, seems to be incapable of producing people endowed with imagination, intelligence, and touch. And thankfully, we all are from the finance background. And one word we all know, and that is called beta. Anybody knows the meaning of beta? Obviously, you know. Beta, the risk factor. And जितने भी लोग मैं देख रहे हैं यहाँ पे, ये वो लोग हैं जिन्होंने लाइफ में कभी ना कभी कहीं ना कहीं रिस्क लिया हो, and they know the outcome of that risk. But there are very few people who have the guts to take the risk. You know why? Because in the past few decades, we have been flooded with one idea, and that idea is called you need security. You need security. Tajinder sir, February मेरे लाइफ का बेस्ट मोमेंट था जी। You know why sir? जी 11 साल मैंने जिन चीजों को सोचा था वो फरवरी में पूरे हुए। 11 साल से जिसको शिद्दत से चाहा उन चीजों को रियलिटी में देखा। February I was flying every day from one airport to another, from one city to another city. 14th February was my anniversary, 11th anniversary. And the fun factor was, I was in Guwahati, my wife was in Delhi. So we both took the flight and landed in Kolkata. और कोलकाता एयरपोर्ट पे एकदम वो पिक्चर है ना शाहरुख खान की, पलट पलट पलट, कौन सी सर? पलट पलट है ना वो पिक्चर, शाहरुख खान बोलता है DDLJ, पलट पलट। तो सेम सिचुएशन संतोष जी मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि वो भी ट्रैवलर है। सो सेम सिचुएशन कोलकाता में मेरे लाइफ में हुआ। मैं बाहर निकला एकदम स्टाइल में, ला ला ला, और बाहर मेरी वाइफ इंतजार कर रही थी कांच के पीछे से। सो इट वाज अ वंडरफुल मोमेंट। फरवरी ऐसे गुजरा, बहुत बेहतरीन। मार्च आया, मार्च भी बेहतरीन गुजरा। 12 तारीख तक मार्च 13 को मैं सुबह तैयार हो रहा था, सूट वूट पहन के एकदम। सडनली एक फोन आया और उस फोन में मैसेज आया that sir your session has been cancelled. जिंदगी में पहली बार ये लाइन मैंने सुना था। And the best part and the irony, that was not the last call. क्योंकि उसके बाद कॉल्स पे कॉल्स आने लगे और वो एक लाइन जो मैंने जिंदगी में कभी नहीं सुना था वो लाइन से लग गई। और हर कॉल पे एक ही आवाज आती थी, आपका सेशन कैंसिल हो चुका है। मैंने पूछा कब तक? बोले इंडेफिनाइट, क्योंकि इससे पहले हमने इंडेफिनाइट शब्द सिर्फ स्ट्राइक्स में सुना था। सो सडनली 13 मार्च became a milestone of my frustration. Within seconds, my entire life was devastated. Because what I dreamt for the last 11 years, it was a reality at that time. Most of the corporates, I was invited as a keynote speaker, as a trainer, and I was paid a good amount of money. And within seconds, everything is gone. शुरुआत के 10 दिन बहुत फ्रस्ट्रेशन हुआ मुझे, and रात भर नींद नहीं आती थी। फिर I became master chef, जो कि सबने किया होगा झाड़ू पोछा के बाद। So I became master chef. I cooked everything, जो दिखा सब कुछ बना डाला। घर के एक एक कोने को ऐसे चमकाया जैसे शीशा लगा हुआ,
और उस कोने ने भी कहा भाई साहब माफ कर दो, इतने सालों में आपने मुझे देखा नहीं, ये प्यार नहीं झेला जाएगा। मतलब कोई बात नहीं, आज धो डालूंगा मैं। सो हो सकता है ये फीलिंग कई लोगों ने भी देखा। अच्छा, फिर मैं बोर हो गया। Then what to do? Then I realized I need to take charge. And then I started my schedule. I started reading books. I started developing contents. और जब हर्ष जी का मेरे पास कॉल आया था सेशन के लिए, तो मैंने जानबूझ के एक टॉपिक दिया, The Journey to the Center of Self. और जब मैंने टॉपिक दिया था, मुझे खुद नहीं मालूम था मुझे बोलना क्या है, because it was a journey to the self. But धीरे धीरे thank God, पढ़ने की वजह से, लोगों से बात करने की वजह से, अध्यात्म की तरफ जाने की वजह से बहुत सारी चीजें मुझे पता चल गई, जिसकी वजह से आज मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ. And that is how I realized that our life is influenced with a lot of things, with a lot of information. But to our dismay, most of the people, their life is influenced in a large measure by commercial advertising. गोरे होने के लिए कुछ कंपनियां LED फेयर क्रीम बेच रही हैं. मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ 2 लाइटें लगा ली. And seriously, whatever skin tone God gifted me, I'm happy with it. You know, whatever skin tone God gifted me. I don't want to spoil my life and money because of the commercial advertising. And such publicity is undertaken only in the interest of the advertisers and not of the consumers. हमें कार तो मिला, लेकिन संस्कार नहीं मिला. और उन कारों की वजह से पता नहीं कितने संस्कारों की हमने तिलांजलि दी. तो तिलांजलि देना बंद करें. आज आपको मैं एक इंसान से मिलाना चाहता हूं, और जब आप इस इंसान से मिलेंगे तो हो सकता है कि शायद आप इसको पहचाने ना. अगर कोई भी इंसान इस इंसान को पहली झलक में पहचान लेगा तो उनको इनाम मिलेगा, सीरियसली इनाम मिलेगा. लेकिन हाँ, आपको पहचानना पड़ेगा ये इंसान कौन है. Are you ready? Just show your thumbs. तैयार हैं आप? पक्का? Oh, thank you. Yes. कौन कौन पहचान पाया? तेजिंदर सर ने सबसे पहले हाथ उठाया. Yes सर, बताइए कौन कौन पहचान पाया इसको, इंसान को? बताइए बताइए. मैंने पहचाना. सेल्फ. तेजिंदर सर? मुझे लगा कि मेरी परछाई मुझे नजर आ रही है. परछाई नजर आ रही है. संतोष सर? सेल्फ, अपने आप को पहचाना. ओके, गुड. और कोई? और कोई? मैं दोबारा दिखा देता हूँ. यस, कम ऑन. सर, मैंने अपने भगवान को पहचान लिया. वो तेरी की. वाह. क्या आप इस इंसान को जानते हैं या सिर्फ पहचानते हैं? जो भी आपने देखा, क्योंकि जानना और पहचानना 2 अलग चीजें हैं. पहचान हाय हेलो से होता है, और जानने के लिए उसको फील करना होता है. हर कोई आज बातें करता है, मैं अपने आप को जानता हूँ, but seriously it's a fake talk. It's really a fake talk, because there are very few people जो अपने आप को एक्चुअल में पहचानते हैं. क्योंकि वो लोग होते हैं, जैसा गीता में कहा गया है कि ना तो इनका द्वेष होता है, ना तो भेद होता है, ना ही दुख होता है, ना ही सुख होता है. एंड सीरियसली ये बातें सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन उसको अप्लाई करना बड़ा मुश्किल काम है. इट इज जस्ट लाइक द कोड ऑफ एथिक्स. पढ़ने में बड़ा मजा आता है, लेकिन अप्लाई करने में बड़ी दिक्कतें आती हैं. सो बिकॉज टू फील एंड टू नो आर टू प्रोफाउंडली डिफरेंट मेंटल स्टेट्स. एंड मजे की बात, मैं जब इस मिरर को देखता हूँ, I feel great. You know why? I'm looking at the exterior. And exterior हमेशा खूबसूरत होता है. इंटीरियर की बात करते हैं. और मिरर एक्चुअल में आपको दिखाता है बाहर से कैसे है. So can't we have a mirror जो कि इंटरनल हमें क्लींजिंग करे, इल्यूमिनेशन दे? आज एक और चीज है मेरे पास. Anybody knows? Candle and matchstick. Yeah, thank you.
लाइक आई बिलोंग टू दैट जनरेशन जहाँ पे कैंडल बहुत यूज होता है और ढिबरी का भी बहुत यूज होता है। बहुत कम लोग जानते होंगे शायद ढिबरी जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर कैरोसिन होता था, उसमें से एक बत्ती लगी होती थी और जब लाइट चली जाती थी तो उसको जलाया जाता था पढ़ने के लिए और घर के काम करने के लिए। सो जस्ट ओके, इस दौरान अगर आपके कोई सवाल हो तो प्लीज आप लोग शेयर करें, बिकॉज आई नीड अ टू वे कम्युनिकेशन, नॉट वन साइडेड, एंड टुडे आई एम नॉट हियर टू प्रीच एनीथिंग। सो आई बिलीव दैट सर जिंदगी में दिया जलाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि ये हमेशा वक्त के थपेड़ों से बुझता रहता है। आप इसे किसी को याद है क्लास 6 जब आपने साइंस पढ़ा होगा और फिजिक्स के बारे में आपने जाना होगा और एक दिन आपको बताया गया होगा फ्लेम्स के बारे में। आपने पढ़ा होगा कि एक फ्लेम 3 लेयर्स में होता है। पहला जो लेयर होता है वो उतना गर्म नहीं होता, बीच का लेयर थोड़ा हल्का सा, और एंड में जो होता है वो सबसे ज्यादा गर्म, सबसे ज्यादा कोर जो होता है वही गर्म होता है। दैट इज द सोर्स ऑफ द एनर्जी। एंड कोर तक पहुंचना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि ये धीरे धीरे जला रहा होता है, तो बड़ा मुश्किल होता है। इस कैंडल से डिपेंड करता है कि आप करते क्या है। या तो आप इससे दीपक जला सकते हैं, या तो किसी और को जला सकते हैं, किसी को भस्म कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि लोगों के लाइफ में अपने सेल्फ से दीपक जलाएं, ना तो उनको जलाएं। एक और ड्रॉप है मेरे पास, कुछ कंटेंट नहीं, आज मैं चीजें लेके आया हूं। सो अगर आप में से किसी को ये पौधा देख के खुशी मिल रही है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज जस्ट शो योर थम्स। थैंक यू। अच्छा, इस छोटे से गमले में ये पौधा खूबसूरत दिख रहा है जी, बहुत बढ़िया। लेकिन क्या कभी हमने इस पौधे के नजरिए से सोचा है कि क्या उसको खुशी मिल रही है? क्योंकि ये पौधा अगर आपने ध्यान दिया होगा बहुत ही छोटी चीज से निकलता है, जिसको बीज कहते हैं। बहुत छोटा सा होता है। एंड बरगद का पेड़ अगर आपने देखा होगा इतना विशाल होता है, उसका बीज उतना ही छोटा होता है। अगर बरगद को इस गमले में डाल दिया जाए तो बरगद की वास्तविकता खत्म हो जाए। ये पौधा बना हुआ है बगीचे के लिए या फिर जंगल के लिए, क्योंकि इसका अस्तित्व वहीं पे है। गमले में रख के आपको खूबसूरती दिख रही है, आपको खुशी मिल रही है, लेकिन इसको नहीं मिल रही। इंसान को अगर पहचानना है तो हमें उसके कोर तक जाना जरूरी होता है। इस पौधे को गमले में निकालिए और जमीन पे लगाइए। यू नो व्हाई? वो जो सीड है, जो बीज है, जब निकलता है वो तो वो 2 तरफ बढ़ता है, एक आसमान के तरफ और एक जमीन के अंदर। और वो जमीन के अंदर जितना ज्यादा जाएगा, जितना तेजी से फैलेगा, जितना स्ट्रांग होगा, जमीन के ऊपर वो उतना ही विशालकाय होगा, उतना ही ताकतवर होगा। और इसीलिए कहते हैं विद्या ददाति विनयम, ज्ञान इंसान को विनयशाली बनाता है। अनफॉर्चुनेटली people with education, people with degrees, they become arrogant. Thank God the people I know, they are not, because ये वो लोग हैं, मैंने देखा है, ये बरगद के पेड़ की तरह होते हैं, जितना विशाल होते हैं उतने ही नीचे होते हैं और उतने ही जमीन के अंदर होते हैं, क्योंकि जितना जमीन के अंदर होते हैं उतने ही इनके रूट्स नरिश्ड होते हैं और उतने ही इनके विचार वृद्ध होते हैं। वृद्ध यानी कि इनका आयतकार, इनका डायमेंशन बहुत ज्यादा होता है। बट यस, to become that tree you need patience, and there are very few people who have that patience. So if you have the patience of the tree, then you should know, कहा गया है आयुर्बलम यशो वर्चः प्रज्ञा पशु वसुनी च
ब्रह्म प्रज्ञाम च मेधाम च तवम ना देहि वनस्पते। अगर इसका मीनिंग कोई बता सकता है तो आई रियली अप्रिशिएट। मैं दोबारा बोलता हूँ, आयुर्बलम यशो वर्चः प्रज्ञः पशु वसुनी च ब्रह्म प्रज्ञाम च मेधाम च तवम न देहि वनस्पते। Okay, let me share the meaning. हे वनस्पति, तुम मुझे आयु, बल, यश, तेज, संतति, पशु, धन, ब्रह्म ज्ञान, बुद्धि तथा धारणा शक्ति प्रदान कर। और ये श्लोक, ये मंत्र मैंने लिया है गरुड़ पुराण के अंदर से। गरुड़ पुराण अगर पढ़ेंगे तो आप उसमें मिलेगा। और हमेशा से वनस्पति की पूजा की जाती है, क्योंकि यही है यथा पिंड तथा ब्रह्म। जिस दिन आपने इस वनस्पति को पहचान लिया, उस दिन आपको पता चलेगा जो आप जमीन पे खड़े हैं, हो सकता है उससे नीचे आप जमीन के अंदर भी है। क्योंकि इंसान जितना सफल होता जाता है वो उतना ही ज्यादा जमीन से जुड़ा होता है। क्योंकि जिस दिन आप जमीन से उठ गए तो आपका, मेरा फोटो हमारे घर की दीवारों पे पाया जाएगा और वो कुछ दिनों तक वहां पे खूबसूरत दिखेगा। और जिस दिन वो इंटीरियर के साथ मैच नहीं करेगा, उसको कहीं ना कहीं संदूक में डाल दिया जाएगा और फिर कुछ दिनों के बाद लोग उसको भूल जाएंगे, क्योंकि किसी के बगैर न तो आज तक कुछ रुका है और न रुका। I'll take 1 minute time and I'll request the moderator to unmute everyone. If people, they could share at least 5 points, minimum 5 points जो भी मैंने शेयर करी है, बिकॉज मैंने डायरेक्टली कोई पॉइंटर्स दिए नहीं आपको। आपके दिमाग ने उसमें से जो भी पॉइंटर्स लिए हैं, क्योंकि हर इंसान का सोच नजरिया अलग होता है, तो आपके हिसाब से अगर 5 ऐसी चीजें हैं जो अब तक मैंने शेयर करी, आपको लगा कि हाँ आपकी लाइफ में ये आपने देखा है, फील किया है, या फिर एडिशन करना चाहते हैं, तो प्लीज डू शेयर 5 पॉइंट्स ओनली। आई विल बी वेटिंग फॉर द नेक्स्ट 15 seconds only. Come on, 5 things. 5 things. And moderator साहिबा, समय मुझे बता दीजिएगा, because बोलते बोलते समय का पता नहीं चलता है। Okay, तेजिंदर जी ने लिखा है live the life full. Okay, thank you. And संतोष जी ने लिखा है opportunity in distress. Exactly. Because जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें अपॉर्चुनिटीज इक्वल होती हैं। ये एक सिक्के के 2 पहलू हैं। नीतीश जी ने लिखा है be a light in someone's life, don't become arrogant. Good. And तेजिंदर जी ने लिखा है understand every moment, and just to add on, he does the same, he lives every moment as well. Then Syed Sohail ने लिखा है plantation, listen, good. Every minute in life is different, so manage to learn. क्योंकि जिसने सीखना बंद कर दिया उसने जीना बंद। सोनिया ने लिखा है be your edge. Okay. Ignite others' life. Good. Be your own hero. Good. Think big and in positive direction so that you can grow big. Pankaj Goel, thank you. Make happy others. Good. So I know that my audience are very enlightened ones, and they are like taking the points in a very practical manner so that they can apply it into their life. This is what pure knowledge is. ये मैंने सवाल क्यों पूछा, क्योंकि उसके पीछे एक और सवाल है, और इस सवाल का जवाब बहुत से लोग दे सकते हैं। आप में से कितने लोग अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में जानते हैं? अम्बिलिकल कॉर्ड। गुड, नितिश, बहुत सारे लोग जानते हैं। सो नितिश, व्हाट इज अम्बिलिकल कॉर्ड? Sir, it is the cord which attaches mother with the fetus. Oh, good. Which attaches the mother with the fetus. Okay, इसमें कुछ और लोग कुछ और ऐड करना चाहेंगे? It provides the food to the baby, basically. Okay, it provides food to the baby. Okay, और कुछ एडिशन कोई करना चाहेंगे? Umbilical cord, नीतीश ने एकदम सही कहा है। Okay, umbilical cord.
Lifeline for the baby. Lifeline for the baby. Exactly. Umbilical cord क्या करता है? एक fetus गर्भ में जो भ्रूण है उसको जीवन प्रदान करता है। और आप ध्यान से देखेंगे कभी umbilical cord नाभि से जुड़ा होता है। करेक्ट। और जब बालक का जन्म होता है तो उसी umbilical cord को कुछ दूरी से काटा जाता है और थोड़े दिनों पे छोड़ दिया जाता है और एक हफ्ते के अंदर वो अपने आप शरीर से अलग हो जाता है। इमेजिन 9 महीने जिस चीज ने उस बच्चे को जीवन दिया, विदिन 7 days वो उसके लाइफ से अलग हो चुका है। दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। और कहते हैं विश्व के निर्माता ब्रह्मा, उनका भी जन्म विष्णु के नाभि में जो कमल निकला था वहां से हुआ। सो अगर आपको सेल्फ जानना है, then you should know what is the umbilical cord in your life. What is that part? Who is that person? What is that feeling जो आपके लाइफ को लाइफ दे रहा है, जो आपके लाइफ को न्यूट्रिशन दे रहा है, जो आपके थॉट्स को और वृद्ध कर रहा है। लेकिन हाँ, ढूंढने में समय लगेगा और समय लगेगा तो घबराइएगा मत, क्योंकि हर अच्छी चीज समय लेती है और इसी को कहते हैं पर्पस। एंड दैट इज द डिफरेंस, लेडीज एंड जेंटलमैन, बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमन। I'm not saying animals are not good, they're beautiful, but yes, they cannot decide the purpose of their life. They cannot decide the goals of their life. Only a human can do it. And that is the reason someone was speaking about, I think Vishal Puri was talking about Darwin's theory, I remember, in the beginning. And that is called Darwin's theory, survival of the fittest. You are fit just because of one thing, and that is the knowledge. अगर ज्ञान है आपके पास तो आपका कॉन्फिडेंस हमेशा उच्च रहेगा। अगर ज्ञान नहीं है तो आप हमेशा डरे रहेंगे। फिर से कहता हूं, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान ले लीजिए, लेकिन अगर सेल्फ का ज्ञान नहीं है, then it is of no use. That will decide your higher purpose. एक बार मैं ऋग्वेद पढ़ रहा था, एक श्लोक मिला, बड़ा ही अच्छा श्लोक है ये। अन्नचतुर्गातु जिममेजत ध्रुवम मध्य अपत्या नाम जियो मर्तस्य चरति सवधाभिर्मर्त्यो मर्त्येना सयोनिः। ये कहता है एक व्यक्ति के जीवन में 3 जन्म होते हैं। पहला एज अ चाइल्ड, जो सबका हुआ है, मेरा भी और आपका। दूसरा, कोई बता सकता है कौन सा दूसरा जन्म? After being a child, what is the second birth? Second birth of a child? After marriage. Marriage. Oh, अच्छा, वो because भारतीय संस्कृति में कहा गया है कि एक लड़की के लिए शादी के बाद एक नया जन्म होता है। Okay, but पता नहीं क्यों लड़कों के लिए भी नहीं होता है। So I believe कि दोनों के लिए होना चाहिए। यहाँ पे biased हो जाते हैं लोग। Okay, ladies and gentlemen, the second birth is called your spiritual एजुकेशन, यानी कि आध्यात्म ज्ञान। बट कहीं ना कहीं पिछले कई दशकों से ये जन्म मनुष्य ने लेना छोड़ दिया है। यू नो व्हाई? पैसे नहीं मिलते। Life taught me one thing practically, and I know the people who are double digit in number, above 40, they know whatever they have done, whatever they will do, they know money is a byproduct. पैसा तो आना ही आना है, आप कुछ भी करेंगे पैसा आएगा। बट हाँ, एक ऐसा लेवल आता है जब आपको लगता है कि ठीक है यार, आप कुछ और देखते हैं। That is the journey. It defines, it decides, and it distinguishes everything. बट हाँ, हर कोई इस ज्ञान को नहीं ले सकता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ी बहुत इस रास्ते पे जाने के लिए। आसान नहीं है और मैं जानता हूँ कि मैं आसान चीजें करना नहीं चाहता। 2 जन्म हो गए, तीसरा जन्म क्या है? What is the third birth? एक
चाइल्ड का, एक स्पिरिचुअल एजुकेशन का, थर्ड आई एम वेटिंग। इंतजार कुछ खबर मेरे यार की। Ladies and gentlemen, the third birth is after death. After death is the third birth. क्योंकि आपको मालूम है हमारी सभ्यता में कहा गया है पुनर्जन्म, और ये मुझे नहीं मालूम सच है झूठ है, लेकिन हाँ मैं आंख बंद करके इसको विश्वास कर लेता हूँ, because nobody knows what is life after death, and that is why it is a new birth. So you all are born as a child, now take the second birth, go to the spiritual path, and I tell you one thing, पोथी पढ़ पढ़ जग भया, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित। मंदिर में जाने से, फोटो लगाने से, अगरबत्ती दिखाने से, 2000 रुपए का हार चढ़ाने से, 5000 दे के एक्स्ट्रा लाइन में घुसने से मुक्ति और मोक्ष नहीं मिलने वाली है, और ना ही वो स्पिरिचुअल पाथ है। स्पिरिचुअल पाथ इट टेक्स अ टाइम, एंड फॉर दैट आई रिक्वेस्ट यू ऑल, बिना गुरु के गति नहीं मिलती है। फाइंड अ मेंटोर इन योर लाइफ, वो कोई भी हो सकता है, गुरु ढूंढिए, बिना गुरु के आपको गति नहीं मिलेगी, तभी आपको स्पिरिचुअल जर्नी पे आगे बढ़ पाएंगे। पता नहीं वो ज्ञान कहाँ गया जो कई कल्पों से था और अभी भी है, लेकिन हमें नहीं मालूम वो कहाँ है। बट हाँ, ये मैंने जान लिया, वो कहीं अगर है तो यहाँ है, और अगर इसको ढूंढना शुरू किया तो मजा बहुत आएगा। और इसके लिए थोड़ा सा अपने से बात कीजिए, एंड डोंट बी कार्तिक। कौन सी मूवी थी जो फोन पे बात करता था? कार्तिक कॉलिंग कार्तिक। कार्तिक कॉलिंग कार्तिक, एग्जैक्टली। डोंट बी कार्तिक कॉलिंग कार्तिक. That is a phase of being psychotic. For that, you have special institutions where you will be taking care. You will be taken care of, and then that is not good thing for you. Self-talk is a talk where you talk to your inner self. और ये मैं जो बातें कर रहा हूँ, कई चेहरों को मैं देख रहा हूँ, उनके चेहरे पे एक मंद मंद मुस्कुराहट है। ये मुस्कुराहट इसलिए है क्योंकि वो लोग करते हैं और वो जानते हैं इसकी ताकत, बहुत ताकत है इसके अंदर। क्योंकि जब सेल्फ टॉक करना शुरू करते हैं तो माइंड आपका उसी दिशा में आगे बढ़ रहा होता है। सब चीजों को जान लीजिए और एक चीज को जानिए, सारी चीजें एक तरफ होंगी और ये जो अभी मैं शेयर करने वाला हूं ये एक तरफ होगा। और इसको कहते हैं पंच तत्व, पंचभूत। अगर आप अपने आप को जानना चाहते हैं तो सीरियसली रिक्वेस्ट करूंगा, बाहर निकलिए कभी, नॉट ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड, बाहर जाइए, नेचर के साथ रहिए। नेचर के साथ आप जब जाएंगे तो आपको 5 तत्व दिखेंगे। जिस इंसान ने इन 5 तत्वों का ज्ञान ले लिया उसको एक्चुअल में सेल्फ का ज्ञान मिल चुका है। यू नो व्हाई? बिकॉज योर फिजिकल बॉडी इज मेड ऑफ दीज 5 एलिमेंट्स। यस, हो सकता है कि शायद हर कोई ना करे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका लग रहा होगा कि शायद उनका फाइनेंस मिल जाएगा। Life taught me one thing practically: to get something, you have to leave something. And that is why, to get the peace of mind, I leave sometimes money. Because money, I know, I can earn it anytime. But peace of mind, if it is gone, ladies and gentlemen, all the money, it is not going to help you out. पैसा बहुत जरूरी है, बहुत इज्जत करता हूँ पैसे की, बड़ी मेहनत करिए उसके लिए, क्योंकि पैसा बहुत से प्रॉब्लम्स को दूर कर देता है। लेकिन अगर पीस ऑफ माइंड नहीं होगा आपके पास, तो कुछ दिन पहले ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से मैंने सोशल मीडिया को बंद कर दिया। कुछ दिन पहले एक बहुत अच्छे एक्टर ने
अपने जीवन को समाप्त किया। उस दिन मेरा दिमाग बहुत ज्यादा हर्ट था बिकॉज ही वाज अ ग्रेट एक्टर, वेरी डाउन टू अर्थ। आज उसके बाद मेरा ध्यान बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे जाने लगा। आई took a detoxification. I went on 15 days dieting off social media. मेरे लिए, मेरे बिजनेस के लिए सोशल मीडिया पे होना बहुत जरूरी है। मैंने 15 दिन का ब्रेक लिया। 60-70,000 people are connected with me on social media. I took a break. I know it's a risk I took, but yes, I know. After 15 days, when I'll come back, I'll be a new person. Because ये सोशल मीडिया पे जो कंटेंट था वो मेरे दिमाग को खराब कर रहा था। और ये बातें बहुत से लोग जानते हैं क्योंकि मैक्सिमम उस पे नेगेटिव कंटेंट आ रहा होता है। मैंने न्यूज देखना पिछले 20 दिन पहले बंद कर दिया जब इंडिया 1 लाख वाले डेटा को क्रॉस कर चुका था, क्योंकि हर दिन सिर्फ डिस्कशन हो रहा था, लोग इनको गाली दे रहे हैं, उनको गाली दे रहे हैं, सॉल्यूशन पे बहुत कम लोग बात कर रहे हैं। एंड दैट इज व्हाई मैंने कोविड और पेंडेमिक का नाम लेना बंद कर दिया, बिकॉज आई नो वो हावी हो रहा है मेरे ऊपर। नेगेटिव चीजें बहुत जल्दी हावी हो जाती है। फिर हैबिट्स को चेंज किया एंड आई एम रियली हैप्पी। आज मेरे मोबाइल को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ रही मुझे, बिकॉज सोशल मीडिया है ही नहीं। व्हाट्सएप है, अगेन व्हाट्सएप बहुत जरूरी होता है तो आई यूज इट। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, कभी कभी हमें अपने आप को जानने के लिए सॉलिट्यूड में जाना जरूरी होता है, और जब पंच तत्व को आप जान लेंगे तो आप जान पाएंगे। इसी को इमोशंस कहते हैं, क्योंकि कल ग्रहण है और कल का ग्रहण आप जानते हैं बहुत विशालकाय है। करीबन 900 साल के बाद ये ग्रहण आ रहा है और कल 6 से 7 ग्रह एक साथ लयबद्ध होने वाले हैं। ज्योतिष में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। कल आप देखेंगे कि ग्रहण के टाइम पे आपके मूड पे चेंजेस होते हैं। चंद्र ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण है, और जब अमावस्या और पूर्णिमा आती हैं तो कभी समुद्र को देखिएगा रात में उसकी लहरें बदल जाती हैं। And this is what we face in ourselves, because your body is made of approximately 70% water. Your body is a combination of 5 elements. Ladies and gentlemen, when they go up and down, this is how you feel the mood swings. This is how you feel the swings in your emotions. So that please learn the power of these elements. बहुत सारी चीजें बात कर ली कि सर प्रॉब्लम तो मैंने बहुत सारी दे दी। Is there any solution for that? इसको कैसे किया जाए? बिल्कुल, अब मैं वहीं पे आ चुका हूँ। 2-3 पॉइंट्स हैं जो मैंने सीखी हैं, उससे मुझे सेल्फ को जानने में मदद करी है। So observation and experience are the only means of apprehending, your reality in a positive manner. And you'll be surprised that we search everything on Google, but we never search it over here, because this is the biggest library, and that is your mind. If you start searching within fraction of seconds, it will bring your memories. वो पहली बार जब छुप छुप के देखा था किसी को, एक पॉइंट आपके सामने क्रिस्टल क्लियर आएगा और आपके चेहरे पे वो मंद मंद मुस्कुराहट आती जाएगी, भले ही आप बचपन के हो या 55 के हो। वो लम्हे आपके चेहरे पे वो मुस्कुराहट हमेशा देंगे, because your mind remembers and stores. Ladies and gentlemen, इसी को यूफोरिया कहते हैं। कुछ कंफ्यूजन है, उसको मैं थोड़ा क्लियर करना चाहूंगा आज। सोम रस लोग लिकर को कहते हैं, और कहते हैं कि देव भी पीते थे। सो बस आपको यही कहना चाहूंगा, सोम रस वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं, यूफोरिया से मिक्स मत कीजिए। सोम एक देवता का नाम है। सोम, द गॉड ऑफ इंस्पिरेशन, द गिवर ऑफ इमोर्टल लाइफ, उनको सोम कहते हैं। बट द मिजरेबल पीपल, वी रिक्वायर समथिंग और द अदर टू ड्राउन आवर सॉरोज इन, और वो बोतल में कई लोग ढूंढ लेते हैं। जब हम उस इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक को पहली बार लेते हैं, जो थ्रिल आता है, जो डिलाइट आता है, ओए होए,
कमजोर से कमजोर इंसान भी आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर को चैलेंज दे देता है कि ओए इसको क्या होगा, मैं देख लूंगा। और एक इंसान जिसने कभी साइकिल ना चलाई हो, वो अचानक बोल पड़ता है आज तो प्लेन तेरा, आगे क्या था, आज तो प्लेन तेरा भाई चलाएगा, भाई चलाएगा। एग्जैक्टली। सो इमेजिन, जिसने साइकिल ना चलाया वो उस दिन प्लेन चला रहा होता है। दिस इज द इंटॉक्सिकेशन। एंड दैट मैन, यू नो, नो डाउट ही थिंक्स इट इज अ डिवाइन मैडनेस, ईश्वर का आशीर्वाद है। No wonder the drink that elevates the spirit becomes divine. Ladies and gentlemen, don't get confused with Som and what you are taking. That is not euphoria. Observation और expressions को use करना सीखिए, बहुत काम आएगा आपके प्रोफेशन में भी, आपके philosophical life में भी, आपके personal life में भी। कुछ किताबें हैं जो अगर आपको समय है तो जरूर पढ़िएगा। 2 किताब मैंने कई सेशन में शेयर किए थे। पहला उसमें है मैन द अननोन, मैन द अननोन, एंड देन आई हैव सम मोर बुक्स। ये कुछ किताबें हैं जो मैं पढ़ रहा हूँ। इसमें इंडियन फिलॉसफी है, उपनिषदों का संदेश है, एंड देन सिस्टर शिवानी का है लाइक हैप्पीनेस अनलिमिटेड। ऐसे बहुत सारे बुक्स हैं। अगर आप पढ़ने की हैबिट डालिए तो धीरे धीरे you can know, you can go and you can reach the center of yourself. If you believe that your center is important to you, if you believe that your happiness is important to you, then read one book. छोटा सा नाम है लेकिन ज्ञान बहुत है। उसका नाम है IKIGAI, Ikigai. Ikigai is a Japanese technique of happiness. और अगर आपको वाकई में बहुत ज्यादा पढ़ने का मन है तो पौराणिक किताबें हैं, आपके धार्मिक किताबें हैं, आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं उसमें अगर आप देखेंगे इन चीजों के बारे में बहुत कुछ है, लेकिन आपका समय नहीं है और इसलिए हम कंफ्यूज्ड हैं। अरे जो लोग प्रोफेशन में हैं, जो लोग जॉब में हैं, ये किताब जरूर पढ़िएगा। बहुत पतली सी किताब है, 1 Minute Manager. 1 Minute Manager. It is going to change your perception of work culture. Imagine that 1 Minute Manager वो सिर्फ हफ्ते में 1 दिन काम करता था, सिर्फ 1 दिन, और बाकी दिन वो सोचता था, और उसकी वजह से उसका सिस्टम क्रिएट हुआ था, एंड उसकी वजह से उसका फाइनेंशियल स्टेटस बढ़ रहा था, बट उसके साथ साथ उसका मेंटल स्टेटस बढ़ रहा था। क्योंकि आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे आपका इनकम उतना बढ़ेगा। जस्ट बिकॉज यू ऑल आर फ्रॉम फाइनेंस बैकग्राउंड, जस्ट टू शेयर वन एग्जांपल, शेयर मार्केट उनके लिए नहीं है जो तुक्के से आते हैं। शेयर मार्केट उनके लिए नहीं है जो टिप्स पे चलते हैं। शेयर मार्केट उनके लिए नहीं है जो दूसरों के इंफॉर्मेशन पे चलते हैं। शेयर मार्केट उनके लिए है जो एनालिटिक्स जानते हैं, जो रिसर्च करना चाहते हैं, जो चीजों को पढ़ना समझना चाहते हैं। Some days ago, rather some months ago, I bought a share for 3 rupees. Today, I have a profit of 1000% in it. Many people know that because that went into insolvency as well. Today, it is giving 1000% profit. One share which the younger brother was doing business into, he could not handle that company and he handed over it to the elder brother. The elder brother paid the debt, and now that company's share is 1 rupee. Every day it is going on higher circuit. Every day higher circuit. 1 रुपए, 5 पैसा, 10 पैसा. So चीजों को जो आप समझेंगे, पढ़ेंगे, रिसर्च करेंगे, तो आपको अल्टीमेटली फाइनेंशियल बेनिफिट तो मिलेगा, बट आपको बौद्धिक संपदा, जिसको आप IPR कहते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, वो भी मिलता जाएगा। बट हाँ, ये पेनफुल प्रोसेस है, इसको बहुत कम लोग करते हैं। और कहते हैं ना कि सुबह होती है, शाम होती है, और हमारी जिंदगी यूं ही तमाम होती है। तो ढाक के 3 पात होते हैं, कई लोग सुबह निकलते हैं, शाम को आते हैं,
फिर लगता है कि टाइम कहाँ चला गया। टाइम वहीं था, आप बहक गए थे, शायद रास्ता गलत ले लिया था, शायद ट्रेन गलत ले ली थी, शायद शुरुआत भी आपने गलत पॉइंट से करी थी। घबराइए मत, शुरुआत फिर से कर सकते हैं। अब चाहे किसी ग्रेट आर्टिस्ट की बात कीजिए, साइंटिस्ट की बात कीजिए, फिलोसफर की बात कीजिए, यू नो अ रियलिटी, बहुत कम लोग होते हैं हु आर ग्रेट पीपल, एंड ये वो कॉमन लोग होते हैं जिनका सिर्फ एक साइड डेवलप होता है। एंड जीनियस एक ट्यूमर है, क्योंकि ट्यूमर एक साइड बढ़ता है और फिर धीरे धीरे वो चीजों को बाकी बात को। आई एम नॉट अगेंस्ट बीइंग जीनियस, बट यस, सेट योर पैरामीटर्स, सेट योर आइडल्स वाइजली। दूसरों को देख के अगर आपको लग रहा है कि उनकी जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, तो देवियों सज्जनों, ये वो मिराज है जो रेगिस्तान में दिखता है, और जब प्यासे को दूर पानी दिख रहा होता है, वो जैसे उसके पास पहुंचता है तो पानी का स्रोत और दूर होता जाता है। ये है एक इल बैलेंस्ड, और यही वो लोग होते हैं जो अनहैप्पी रहते हैं। याद रखिएगा, अगर कोई लोग टीवी पे बहुत ज्यादा चमक रहे हैं, बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा इंटरव्यूज वगैरह हो रहे हैं, तो याद रखिएगा जरूरी नहीं कि वो खुश हैं, क्योंकि उनको खुशी उसी में मिल रही है, हमेशा सामने आने में, क्योंकि कहीं ना कहीं एक दरार होता है कांच में और वो धीरे धीरे फैलता जाता है। तो आपको भी देखना पड़ेगा कि क्या आप उस जीनियस वाले ट्यूमर को अपने अंदर आने दे रहे हैं या नहीं। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आइसोलेशन एंड सॉलिट्यूड। आइसोलेशन को इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं? आइसोलेशन। आइसोलेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? मेरी मातृभाषा है और मेरी अंग्रेजी थोड़ी सी कमजोर। हाँ जी, एकांतवास। एकांतवास नहीं, आइसोलेशन। आज का यंगस्टर इससे जूझ रहा है, अकेलापन। एकांतवास का मतलब होता है सॉलिट्यूड। आइसोलेशन वाला इंसान हमेशा बोर होता है, सॉलिट्यूड वाला इंसान बोर कभी नहीं होता, बल्कि उसका फोटो, मुझे याद है संतोष जी जब चेयरमैन थे और तेजेंद्र जी आए थे एक प्रोग्राम में ब्रांच में, और आपने मुझे गौतम बुद्ध जी का एक मूर्ति गिफ्ट किया। आई होप आई एम राइट। यस, मुझे बिल्कुल याद है। तो गौतम जी का एक मूर्ति गिफ्ट किया गया था, और मजे की बात, गौतम बुद्ध जी वो हैं जो सॉलिट्यूड में थे, आइसोलेशन में नहीं थे, वो अकेले थे, लेकिन आज उनके फोटो जो है उन लोगों के घरों में है। और ऐसे एक और इंसान है जो 1893 में, ये सवाल है जवाब दीजिएगा, 1893 में ये अमेरिका गए थे और लोगों ने इनकी बेइज्जती करी थी। डू यू नो हिज नेम? विवेकानंद। यस, विवेकानंद जी। जब वो कांग्रेस ऑफ रिलीजन में बोलने गए थे तो लोगों ने उनका मजाक उड़ाया था। अच्छा, उन्होंने शुरुआत करी, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। जब ये स्पीच खत्म हुआ, एक लेजेंड का बॉर्न हुआ, स्वामी विवेकानंद। एक और किताब है, समय मिले तो पढ़िएगा जरूर, उसका नाम है लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा बाय स्वामी विवेकानंद जी। सो देवियों सज्जनों, आइसोलेशन वाले लोग अधिकतर बार पंखों पे पाए जाते हैं, सॉलिट्यूड वाले लोग हमेशा लोगों की दीवारों पे पाए जाते हैं, ना अपने नहीं, दूसरों के घरों में। एंड इमेजिन कितना खूबसूरत लगेगा अगर आप किसी के घर में गए और आपको फोटो उनके दीवारों पे लगा हुआ है। ओए, इसका मतलब है आपने उनके लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन किया है। लेकिन कभी कभी याद रखिएगा, अगर वो दीवार ऐसी हो जिसके आसपास कुछ जालियां लगी हो, तो वहां पे वो फोटो अच्छा नहीं लगे, क्योंकि बॉम्बे का आर्थर जेल जो है वो विजय माल्या का इंतजार कर रहा है फोटो के साथ, वो नीरव मोदी का इंतजार कर रहा है फोटो के साथ। तो हर दीवार पे हमारी फोटो नहीं होनी चाहिए, लेकिन हाँ,
उन दीवारें पे होनी चाहिए जहां पे लोग दिल से हमें रिस्पेक्ट करते हो, दिल से प्यार करते हो। और वो सबसे अच्छी दीवार है किसी का सेल्फ। जब आप किसी के लाइफ में इन्वॉल्व होते हैं और लोग बिना एक्सपेक्टेशंस के आपको प्यार देते हैं, तो याद रखिएगा आपने अपने सेल्फ को पहचान लिया है, क्योंकि आपने लोगों की लाइफ में वैल्यू एडिशन किया है। And the happiest is and most useful men, you know, and men doesn't mean only a male gender, it consists male and female as well. Otherwise पता चला कि मुझे biased बोल दिया गया. So the happiest people, I'll say, you know, they consist of a well integrated whole of intellectual, moral and organic activities. And same unconditional love you have to show for yourself. जितने भी लोग जिंदगी के अच्छे पड़ाव को देख चुके हैं, उनसे बस पूछना चाहूंगा, क्या आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं? जी। करते हैं, बहुत बढ़िया। अनकंडीशनल करते हैं? जी बिल्कुल। मान लीजिए आपके बच्चे ने कोई गलती करी है, क्या तब भी आप उसको अनकंडीशनल प्यार करते हैं? जी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, जब आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप अपने से प्यार करना क्यों बंद कर देते हैं और अपने को पनिश करना क्यों स्टार्ट कर देते हैं? Can't you love yourself unconditionally? But yes, हम पनिश करना शुरू कर देते हैं। ओह मैंने ये नहीं किया, I have to punish myself. I have to punish. You are not a criminal. You're a normal human being with emotions. अगर आपने सेल्फ लव करना शुरू कर दिया, I tell you, बड़ा मजा आता है, क्योंकि अहम ब्रह्म, मेरे अंदर ही पूरा ब्रह्मांड है। और अगर आपने ब्रह्मांड से ही प्यार किया, आपको सारी चीजें मिलेंगी, वो ताकतें मिलेंगी जो ब्रह्मांड के अंदर है। एंड प्लीज ये मत सोचिएगा कि ये बातें मैं सिर्फ बोलने के लिए कह रहा हूँ। इन चीजों को मैंने फील किया हुआ है, जिंदगी के कुछ ऐसे लम्हे देखे हैं कि जिंदगी ने वाकई में जो रियलिटी दिखाई। I belong to a business family, but when I came to Delhi, you know, I took my responsibility, I took my decisions, and today, if I'm a speaker, तो बहुत से लोगों को मैंने मना और बहुत से लोगों को मैंने ना किया है। हो सकता है कि शायद उनको लग रहा होगा कि मैंने उनकी बेइज्जती करी है, मैंने उनको इंसल्ट किया है, but yes, मुझे पता है how to say no, because the day I started saying no in a respectable manner, I started loving myself. And that is not selfishness. That is my self-esteem. अब वापस आते हैं हम लोग सेशन के शुरुआत में। कुछ शब्द हमने शेयर किए थे सेल्फ से रिलेटेड। आई होप आपको याद हो। And within 5 minutes we are going to wind up the session. Okay. So कुछ शब्द हैं, याद रखिएगा। ये अपने आप को समर्पित कीजिएगा इन शब्दों को। इन शब्दों को अपने लाइफ में जितना ज्यादा आप ले आएंगे, आप उतने एलिवेट होते चले जाएंगे, आप उतने इलेटेड होते चले जाएंगे। और फिर उस सॉलिट्यूड के बाद जब आप निकलेंगे वहां से, तो आपके आसपास एक ऑरा होगा जिसको प्रकाश कुंज कहते हैं, वो आपके आसपास होगा और उसी को रेडियंस कहते हैं। रेडियंस आपके चेहरे पे दिखेगा और चेहरे पे रेडियंस लाने के लिए कोई क्रीम की जरूरत नहीं है। अगर आप इंटरनली हैप्पी रहते हैं तो चेहरे पे दिखता है, क्योंकि आप फेक 10 मिनट कर सकते हैं। कई लोग देखो मुस्कुराते रहते हैं, 10 मिनट बाद उनका चेहरा मुरझा सा जाता है। और जो वाकई में दिल से खुश होते हैं वो दिन भर दिल खोल के हंस रहे होते हैं। और इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल संतोष जी हैं, अरविंद जी हैं। जब आप मिलेंगे तो लगे कि हाँ आसपास कोई हंस रहा है, वो दमदार हंसी। वो हंसी आजकल लोग हंसना भूल गए हैं, वो सिर्फ फेक हंसी करते हैं। क्योंकि सामने बॉस को भी तो सुनना होता है। So, कुछ वर्ड्स है, इसको कोशिश कीजिएगा, यूज कीजिएगा। फर्स्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेकंड, सेल्फ एम्पैथी। एम्पैथी मतलब समान अनुभूति। थर्ड, सेल्फ रियलाइजेशन। फोर्थ, सेल्फ एस्टीम। नेक्स्ट इज सेल्फ रिस्पेक्ट। नेक्स्ट, सेल्फ इमेज। अगर आपकी आंखों में आपका इमेज छोटा है तो दूसरे की आंखों में वो और छोटा। अगर आपकी आंखों में आपका इमेज बड़ा है तो लोग आपको इज्जत देंगे दिल से, क्योंकि पहले आपको अपने आप को इज्जत देनी हो।
अगर दे पाएंगे अच्छी बात, नहीं तो आप हमेशा झुके रहेंगे। और जो पेड़ बहुत ज्यादा झुक जाती है वो बहुत जल्दी टूट भी जाती है। और सीधा होना और बेवकूफ होना दो अलग बातें हैं। अगर आपके सीधेपन से लोग आपका बहुत ज्यादा फायदा उठा रहे हैं वो बेवकूफी है। चाणक्य को पढ़िएगा, वो आपको ज्ञान देंगे, वो सीधापन नहीं है। सीधे लोगों की इज्जत होती है, बेवकूफों की नहीं होती। इसलिए सेल्फ इमेज क्रिएट करना जरूरी है। देन कम्स सेल्फ कंपैशन, यानी अपने लिए प्रेम भावना रखना। और याद रखिएगा, जिसके अंदर जो होता है वो वही दे सकता है। जिसके अंदर ज्ञान है वो ज्ञान देगा, जिसके अंदर अज्ञानता है वो अज्ञानता देगा। और कहते हैं इग्नोरेंस, कुछ लोग ज्ञानी लोग कहते हैं इग्नोरेंस इज अ ब्लिस। अज्ञानता एक वरदान है। मैं उनको कहता हूं इग्नोरेंस इज स्टूपिडिटी। अज्ञानता वरदान नहीं, अभिशाप है। और लॉ के लैंग्वेज में कहते हैं ignorance of law is a crime. You cannot be ignorant. Okay? Then self-assurance, self-motivation and grit. Grit का मतलब है किसी भी सिचुएशन को आप हैंडल करते हैं, आप आगे बढ़ते हैं। पिछला 3 महीना चैलेंजिंग टाइम था, but yes, as rightly told by some speaker, प्रॉब्लम्स आती हैं तो कॉइन का दूसरा साइड अपॉर्चुनिटीज भी आती है। आज अगर ये चैलेंजिंग टाइम नहीं होता तो हम सारे लोग वेबिनार के बारे में सोच तक नहीं सकते थे। हमें लगता था कि नहीं हो पाएगा, बिकॉज पर्सनल टच नहीं था। एंड इमेजिन वेबिनार की वजह से हमारा फाइनेंशियल अगर आप देखेंगे तो बहुत बचत भी हो रही है, टाइम की भी बचत हो रही है और काम हो रहा है। एंड बेस्ट पार्ट, इन चैलेंजिंग टाइम्स की वजह से एक कॉन्सेप्ट बहुत आगे आया, इसको कहते हैं कोलैबोरेशन। आज का भी अगर आप सेशन देखेंगे कोलैबोरेशन है यहाँ पे। आज कोलैबोरेशन की वजह से आपके बिजनेसेस बढ़ रहे हैं। अगर बिजनेसेस का कोलैबोरेशन हो सकता है तो आपका आपसे कोलैबोरेशन क्यों नहीं हो सकता है। एंड थैंकफुली मुझ जैसे और भी कुछ वक्ता हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। हम लोगों ने भी कोलैबोरेशन किया और हमने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया लीडर्स एवेन्यू के नाम से। अभी हमने पिछले 2 बार उसमें रीसेट जिंदगी का प्रोग्राम किया था और बहुत सारे स्पीकर्स हमारे यहाँ पे हैं जिन्होंने बहुत सारे ऑडियंस है जिन्होंने उसको अटेंड किया था। और हम लोग हर बार कोशिश करते हैं कि हम नए नए टॉपिक्स लेके आए, नए कंटेंट लेके आए। एंड आई एम वेरी श्योर आज जो हमने बातें आपसे शेयर करी हैं वो रीसेट जिंदगी वाले प्रोग्राम में हमने नहीं करी थी। बिकॉज मेरा मानना है समय परिस्थिति के हिसाब से ज्ञान का महत्व और ज्ञान की परिभाषा बदल जाती है। तो कोलैबोरेशन कीजिए, सेम माइंड लोगों को लेके आइए जो आपके सेल्फ को समझते हो और आप उनके सेल्फ को समझते हो, और तब आपकी स्थिति उस नमक की होगी जो पानी में घुल चुका है। क्योंकि जैसे आप डालेंगे नमक को वो उस पानी का हिस्सा बन जाएगा और धीरे धीरे वो समुद्र बनता जाता है। और समुद्र की खासियत है ये चीजों को एक्सेप्ट करता है और जो चीजें काम की नहीं होती उसको किनारे पे छोड़ देता है। और जीवन की शुरुआत कहते हैं समुद्र से ही हुई थी, जल से ही हुई। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम वही दे सकते हैं जो हमारे पास होता है। तो कोशिश कीजिए अपने अंदर इतनी ताकत लाइए, पावर लाइए, अपने अंदर एक और क्वालिटी लेके आइए जिसको कहते हैं क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। क्योंकि जिज्ञासा अगर आपके अंदर है तो आप हमेशा दिल से बच्चे बने रहेंगे। आई टेल यू, बड़े होकर ना जिंदगी में कुछ नहीं मिलता, बोर हो जाते हैं लोग। जो लोग बड़े हो जाते हैं दे आर वेरी बोरिंग। ओके, सो आपके लिए एक होमवर्क है, इफ यू आर रेडी। ओके, सो होमवर्क नोट कीजिएगा। पौराणिक ज्ञान के हिसाब से मनुष्य के जीवन में 4 परिस्थितियां यानी 4 स्थितियां होती हैं। पहला है वेकिंग, जब आप फिजिकल चीजों को फील कर रहे होते हैं, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट को फील कर रहे होते हैं। दूसरा होता है ड्रीमिंग, जब उस नींद में, सपने में आप उन चीजों को एंजॉय कर रहे होते हैं, आपका जो स्पिरिट है वो घूम रहा होता है। तीसरा होता है स्लीपिंग। अच्छा, स्लीपिंग से पहले ड्रीमिंग आता है। लोग ऑपोजिट सोचते हैं, आप पहले सोते नहीं है, आप पहले ड्रीम में जाते हैं फिर स्लीप में जाते हैं।
अच्छा, स्लीप वो स्टेज होता है जहां पे ना तो सपने हैं और ना ही डिजायर्स हैं, इसी को कहते हैं सुसुप्ति। इन तीनों के अलावा चौथा स्टेज आता है जिसको कहते हैं तुर्य। तुर्य यानी एक प्योर इंट्यूशनल कॉन्शियसनेस where there is no knowledge of objects internal or external. आपका होमवर्क यही है, ढूंढिएगा उस तुर्य का अर्थ क्या है, क्योंकि जिसने उस तुर्य का अर्थ ढूंढ लिया, मैं भी ढूंढ रहा हूं, मेरे लिए भी होमवर्क है, जिस किसी ने उस तुर्य का अर्थ ढूंढ लिया उसको मोक्ष प्राप्त होगा। इसलिए एक और किताब पढ़िएगा, और किताब का नाम है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, शायद पढ़ी हो किसी ने, स्वामी प्रियानंद। इट्स अ ब्यूटीफुल बुक, बहुत खूबसूरत तरीके से जीवन के चीजों को बताया गया है, बहुत प्रैक्टिकल मैनर में। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, टू कंक्लूड आई विल जस्ट से अबते हेलो वरुण नमो भीरव यज्ञे भीरिमहे हविर्भि कश्यन्न स्मर यमसूर परचेत राजन्ने नांसी शिशितः करतानि। ये वेद से लिया गया है और ये वरुण देव को कहा गया है, उनकी प्रार्थना की गई है दैट हे देव, मैं आपके क्रोध प्रणाम करता हूँ, हे वरुण देव मैं आपके सामने नमन करता हूँ, और नमन करने के लिए मैं 3 चीजों के साथ नमन करता हूँ। पहला है मैं नमन करता हूँ आई सरेंडर, दूसरा मैं नमन करता हूँ बाय सैक्रिफाइसिंग, और तीसरा है मैं नमन करता हूँ बाय ऑफरिंग। ओ रूलर, ओ माइटी लॉर्ड, ओ थिंकर, ओ किंग, रिमूव फॉर अस द सिंस दैट हैव बीन डन। लेडीज एंड जेंटलमैन, माय कंक्लूडिंग रिमार्क्स, these 3 things, surrender, sacrifice and offerings, अगर आपने जान लिया तो आप अपने सेल्फ के बहुत करीब आ जाएंगे। सरेंडर करना है अपने आप को टू द ऑलमाइटी, टू द डिवाइन, बिकॉज जहां तक पहुंचा हूं उन्होंने बहुत मदद करी है एंड वाकई में हमेशा साथ रहते हैं, तो इससे दिक्कत मुझे है नहीं, क्योंकि जब उनका हाथ है, आशीर्वाद है, तो मुझे क्यों टेंशन लेनी, मैं तो सिर्फ काम करता जाता हूँ। और जैसा कृष्ण ने कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। सो दूसरा है सैक्रिफाइस। आई सैक्रिफाइस माय ईगो, आई सैक्रिफाइस माय एक्सपेक्टेशंस, I sacrifice my caprices, I sacrifice my negative things, negative thoughts to you, and offerings. I offer my prayer to you, I offer my good qualities to you, I offer compassion to you means to everyone. I offer what I have to you, because you and me are the same. The day I get to know about you, I'll be knowing about myself. Ladies and gentlemen, it was wonderful talking to you. It's a pleasure always to have such a great audience. And if I was able to add value to your life, even a single point, I feel that I was successful. Because for me, success doesn't mean money. Money is an outcome, is a byproduct. I will get it. But yes, if someone who says that because of you, I learned something, I gained something, and my life is upgraded now, I feel great, I feel successful. So thank you very much for making me a part of yourself. And yourself, myself, collaborated, and we became self, and selfless. Thank you very much. It was wonderful. Thanks to all the organizers. Thanks to my moderator. Thanks to the chief guest and all the guests and all the audiences for being a great support to me. And thank you very much for sharing the chat on the chat box. Wonderful talking to you. Thank you. Over to you, moderator Saiba, Purnimaji. Thank you, Govind sir. It was such a nice and enlightening deliberation by you. Actually, it was more of regarding spiritual journey of a person, because there's a lot of negativity all around these days. So one has to be self-centered, means connected to one's own self. पूर्णिमा आपसे एक सवाल। Yes, sir.
बताइए इसमें से कौन सा फूल असली है? So without touching, I cannot guess. Oh, thank you very much. You have given the right answer. Ladies and gentlemen, अगर आप सर एक ही फूल असली है इसमें से। कौन सा? जिसने उठाया हुआ है। जिसने उठाया हुआ है। अच्छा, FOOL। नहीं, फ्लावर वाला फूल है। Thank you. So, ladies and gentlemen, this is for my moderator. Thank you very much for being a great support today. So, thank you. The moderator said gave the right answer. Without feeling, you cannot sense it. So, feel touch से आता है और touch जब अपने आप को करते हैं तो वो एक self realization होता है और तब आपको पता चलेगा असली कौन है और नकली कौन है। Thank you. एक चीज बोलना चाहता हूँ सर। Yes sir. If I have time. पूर्णिमा, can I? Yes sir, sure. Thank you very much. मैं means मैं करता। जहां हम समझते हैं मैं हूं, मैं कर सकता, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसा सोचूंगा, तो उस मैं में कहीं ना कहीं अहंकार और अभिमान और अपने में ताकत और वो पावर और मिसयूज, किसी टाइम का, सिचुएशन का मिसयूज जहां मैं करता आता हूं। लेकिन मेरे को लगता है कि जहां मैं कर्म हूं, वहां वो जो कर्म है वो कर्म कर्ता से बड़ा हो जाता है। इसमें कर्ता तो करता ही है, लेकिन उसके कर्म से वो कर्ता ज्यादा बेटर हो जाता है। क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशंस है, उन सिचुएशंस में हर एक को किसी एक ऐसे स्वामी, किसी ऐसे व्यक्ति की, किसी ऐसे पर्सनैलिटी की हर एक को आवश्यकता है, जिसके शब्दों से, जिसके व्यवहार विचार से, जिसके पार्टिसिपेशन से किसी का सोच समझ, उसकी जिंदगी बदल जाए। जैसे आज आपने बोला, मतलब आप जितनी भी चीज हैं वो सभी सुनने में इतनी अच्छी लगी और लगा कि हाँ ये भी एक पर्सनैलिटी का जरूरी, लाइफ का जरूरी पार्ट है। तो मुझे लगता है कि करता एज कर्ता नहीं, करता एज कर्म अगर होता है तो शायद जिंदगी में ज्यादा यूजफुल होता है। और इसलिए हिंदी व्याकरण में भी अगर आपने पढ़ा होगा तो कर्ता ने कर्म को कर्म से संपदान के द्वारा कर्म से कर्म को वो व्याकरण में भी लिखा है वही चीज। जी थैंक यू सर, ऋषि पाणिनि फॉर दिस सर, थैंक यू वेरी मच। मैं कुछ कहना चाहता हूँ सेल्फ के ऊपर जो आपने बोला, इट इज वेरी गुड थिंग। और सेल्फ एक ऐसी चीज है, जैसे हम कहते हैं ना कि स्वर्ग में जाएंगे या नरक में जाएंगे, इट इज नॉट ए ऑप्शन, इवन इट इज नॉट इन द हैंड ऑफ गॉड, इट हैज टू बी अर्न्ड। मैं खुद कुछ करूंगा अपने लिए, मुझे स्वर्ग करना है, ये नहीं कि मैं कह रहूंगा भगवान के हाथ में कि मुझे स्वर्ग देगा या नरक देगा। गॉड डज नॉट हैव एनी पावर, आई थिंक इट इज माय पर्सनल व्यू। बिल्कुल, ये ट्रायल बैलेंस है, इट इज आइदर इसका बैलेंस शीट यहीं पे मैच करना पड़ेगा। इसमें एक वर्ड आता है स्वार्थ, वो जनरली ये नेगेटिव वर्ड बोल लिया जाता है। आई थिंक देयर इज वेरी मच पॉजिटिविटी इन स्वार्थ। स्वार्थ मींस स्वयं का अर्थ। बिल्कुल, अगर मैं अपना अर्थ ही नहीं समझ सकता तो मैं क्या दूसरे को कुछ दूंगा जी। अपने को समझने के बाद ही आई कैन डू समथिंग गुड। अगर मुझे अच्छा करना है, जैसे मंदिर में जाते हैं, मुझे मंदिर में जाना कोई बहुत अच्छा नहीं लगता। हम हिंदू धर्म में मंदिर की बहुत मान्यता है, लेकिन मुझे लगता है उसमें भी हमें कुछ अहंकार आता है, कुछ घमंड बन जाता है, कुछ मतलबीपन या डिसीसिवनेस सीखते हैं। भगवान को भी डिसीव करके आते हैं। Why not to worship some सोचिंग। मैं पेड़ को पूजा करना ज्यादा अच्छा मानता हूँ जी। पेड़ जो है पृथ्वी से जुड़ते, पृथ्वी हमारा मूल है जी, हम अर्थ से जुड़ जाते हैं उससे। अगर पेड़ की मैं पूजा करता हूँ, जैसे अभी गमला दिखाया था शुरू में, मुझे बड़ा अच्छा लगा। हाँ, गमले वो कहते हैं कि अर्थ से जुड़ा वो। कई बार गमले भी अच्छे होते हैं, ऐसी बात नहीं है, मुझे ये मेरा अपना व्यू है। तो अर्थ से अगर हम पेड़ की पूजा करते हैं, उसमें अहंकार नहीं आता, क्योंकि हम अर्थ से जुड़ रहे हैं उसमें। मंदिर में जाते हैं तो अहंकार आता है कि मैं आज भगवान की 2 रुपए चढ़ाऊंगा, 200 चढ़ाऊंगा, 2000 चढ़ाऊंगा। एक अहंकार हो जाता है कि मेरे नाम से मंदिर भी चला, मेरे से वो भी गई। इसीलिए जब घरों में इलेक्ट्रिसिटी वायर डाले जाते हैं तो एक और वायरिंग होती है जिसको अर्थिंग कहते हैं। अर्थिंग। और बिना अर्थिंग के पूरे घर के सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स उड़ जाएंगे। इसलिए अर्थिंग बहुत जरूरी होता है। इंसानों का भी अर्थिंग होना इज रियली रिक्वायर्ड। थैंक यू हरिंदर जी। सर आज संतोष जी से भी रिक्वेस्ट करते हैं कुछ। हाँ बिल्कुल, मैं तो भी बस सोच रहा हूँ कि वो बोलेंगे अभी। अरे सर इतनी अच्छी अच्छी बातें हो गई है तो मैं अब क्या बोलूं। लेकिन जो इन्होंने ना सॉलिट्यूड के बारे में बोला, वो एक्चुअली हम लोग अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करता हूं मैं एवरी डे, कभी कभी नहीं, एवरी डे। एक्चुअली मॉर्निंग में
रोज एक्सरसाइज योगा वगैरह के बाद 10 मिनट के लिए एक बार सोचते, आंख बंद करके बैठते हैं और उस समय सोच लेते हैं कि क्या जरूरी है आज करना। और एक लंबी सी लिस्ट होती है, वो हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है स्टाफ का, उस पर डाल देते हैं। अपने लिए 1 या 2 काम रखते हैं, वो मुश्किल से काम होते हैं जो बहुत दिनों से पेंडिंग होते हैं, और ये सोचते हैं कि आज इस काम को करना है, और पूरा दिन फोकस उन्हीं 2 कामों पे रहता है। उसमें अगर एक भी अचीव हो गया तो काफी इंपॉर्टेंट काम होता है और वो हो जाता है। जैसे कई दिनों से किसी से बात नहीं हुई या कोई 5 महीने से कोई काम पेंडिंग है, उस तरह का कोई काम रोज एक करते हैं और वो पूरा हो जाता है, तो अच्छा लगता है। तो सॉलिट्यूड में यही देखा जाता है। कल पहली बात क्या लगता है कि हम कहाँ दौड़ रहे हैं। आजकल जो लॉकडाउन हुआ है, इसके अंदर एक चीज समझ में आई है, पहले मैं रात को 9 बजे 10 बजे तक भी बैठ जाया करता था ऑफिस में कि ये भी निपटा लो वो भी निपटा लो। अब ये है कि निपटे या ना निपटे 6 बजे घर जरूर पहुंचना है। तो ये सॉलिट्यूड की देन है कि हम निपटे या नहीं निपटे, हम 6 बजे ऑफिस से निपट लेंगे। आप ऑफिस जरूर निपट लेंगे, अपने आप होता रहेगा काम। कल गोविंद जी से बात हो रही थी, तो उसमें बात में मेरी आदत है बात में कुछ समझने की, क्योंकि इतना ज्ञानी है ये गोविंद मिश्रा जी कि इनकी किसी ना किसी बात में कुछ ना कुछ आपको लाइफ में चेंज के लिए मिलता जरूर है। तो कल इनकी जो बात से मेरा डिस्कशन हो रहा था, तो उसमें ये था कि आपके पास एक रीजन होना चाहिए सुबह जागने का और रात को सोने का। जी। बिना रीजन के अगर आप जागते हैं और बिना रीजन के आप सो जाते हैं, तो आप अपनी लाइफ में कोई भी लक्ष्य दे करके ना जागते हैं ना सोते हैं। और बिना लक्ष्य के जब आते हैं, तो आजकल इतना जो उदासीन माहौल चल रहा है, उसी में हम लोग खराब हो जाते हैं। तो लक्ष्य मतलब वो केवल प्रोफेशनल नहीं होगा, वो पर्सनल भी होगा, सेल्फलेस भी होगा, सोसाइटी के लिए भी होगा, स्पिरिचुअल भी होगा, सब चीज होगी। तो कल मैंने गोविंद जी से ये जो मेरी बात हुई, उससे मैंने सीखा कि ऑलवेज लिव विद द टारगेट। अपने पास टारगेट होना चाहिए काम के अलावा भी, जो कि हमें अच्छा लगे मन को। जी हाँ जी, हाँ जी। सर आप श्रेय देते रहते हैं, ज्ञान आपसे। थैंक यू नीतीश जी। और आपकी वजह से गला ठीक कर लिया मैंने, 3 दिन सॉलिट्यूड में रह के सर्दी जुकाम ठीक हो गया मेरा। गोविंद सर, एक क्वेरी आई है आपके लिए सर। जी सर। चैट बॉक्स में है सर, अगर आप कर सकते हैं तो, नहीं तो मैं रीड कर देता हूँ सर। Good evening, sir. Would you like to say something about the thought of existential crisis? थोड़ी अंग्रेजी कमजोर है मेरी, इसका अर्थ मतलब यानी कि अभी जो हमारे जीवन में विपदाएं चल रही हैं उसके ऊपर, यही हिंदी होगा पढ़ के तो यही। The purpose of life, where we are going, are we stepping towards the way which we want to achieve in a life? Okay. Suniji, like I'm vegetarian. Somebody might be non-vegetarian. Now, I don't know what is the taste of non-veg. If you give me non-veg from a 5-star, a delicious fun, you know, the fun factor, I won't have it because I'm a pure, hardcore vegetarian. So my purpose, your purpose are like the food. We have different taste. I don't know what your purpose is, and you don't know what my purpose is. And that is why I cannot give you a suggestion on this. Being a lady, you have more responsibilities than a male. And being a lady, you have the responsibility to raise one generation, the kids, which male, although they want it, but I don't know, हो सकता है कुछ कारणों से नहीं हो पाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं। पर्पस आपका क्या है? हो सकता है कि अगर आप एक पेरेंट हैं, आपकी लाइफ का एक ही पर्पस होगा, उस बच्चे को रेज करना, ताकि वो समाज में एक बदलाव लाए, एक वैल्यू एडिशन करे। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पर्पस अलग होते हैं और लोग उनको पागल कहते हैं। और याद रखिएगा, इतिहास को रचने वाले हमेशा पागल होते हैं, क्योंकि सयाने लोग बैठ के सिर्फ तालियां बजाते हैं और कमियां निकालते हैं। तो आप जो भी कर रही हैं करंट सिचुएशन में, याद रखिएगा, सिचुएशंस आएंगे, सिचुएशंस जाएंगे, प्रॉब्लम हमेशा सेम होता है, उसका फॉर्म बदल जाता है।
किसी स्पीकर ने शुरुआत में कहा था पिछले 100 साल 200 साल 100 साल में ये ऐसा नहीं हुआ था। मैं एक चीज की गारंटी देता हूं, इस पैनल में जितने भी लोग हैं उन्होंने वो पुराने 100 साल पहले वाला प्रॉब्लम देखा नहीं है। हाउ कैन वी कंपेयर इट? और यही बात अगले 100 साल बाद कोई और भी कर रहा होगा। सो एस चाणक्य टोल्ड, गते शोको न कर्तव्यो भविष्यं नैव चिन्तयेत् वर्तमानं कालेन वर्तयन्ति विचक्षणाः। Be in the present, learn from the past and think for the future. आप जो भी काम कर रही हैं मजे से कीजिए। आसपास जो चीजें हो रही हैं आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, अपने आप को बचाइए। और जो भी आपके लाइफ का पर्पस है, अगर वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो आप आगे बढ़ेंगी चाहे कुछ भी हो जाए। आई होप दैट आई कुड आंसर एंड आई नो, मतलब मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट कर देता हूँ लोगों के माइंड में, ताकि लोग और सोचे उसको ठीक से। थैंक यू सोनिया जी। Okay. I hope there's no other question. No, sir. No query as such. Thank you, sir. Thank you. So now I would request C. Vishal Puri ji to say few words. Vishal ji हैं? I think. नहीं है शायद. Okay. So I would like to request CA Nilesh Parashar ji to give a formal vote of thanks. Thank you, Purnima ji. I'm audible, ma'am? Yes, yes. Yes. Yeah. First of all, I would like to thank Nitish Chugji for conducting this wonderful seminar in which our own speaker, CS Govind Mishra ji, was the speaker. And he deliberated so well on this topic. And I also want to thank our chief guest, CA Tendra Bhardwaj sir, who enlightened us with his journey. And he has, at the time of his chairmanship, I was his student only. And now I am the vice chairman of this esteemed branch. So it is a blessing in disguise that I'm able to achieve this feat. And I also want to thank Vishal Puri ji, guest of honor. And one more branch is also there, executive member of the branch is also Sonipat branch. Yeah. And I also want to thank our own member, the secretary of our Faridabad branch, Harsh Mittal ji, for organizing with Nitish Chugji such a wonderful program. And I also want to thank at last the Purnima ma'am for acting like a moderator in this program. Thank you so much everyone for joining this. I hope you will like and you will surely join the next program we will be conducting on this platform. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much everyone for joining the program. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you everyone. Thank you everyone. Thank you. स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें. Yep, well said. Well said.